हिंदी भाषा के लिए इट्स नॉट द बेस्ट टाइम राइट नाउ। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन जी ने हिंदी को अक्यूज किया है ऑफ स्वॉलोइंग अदर इंडियन लैंग्वेजेस। ऑल द वाइल कर्नाटका में हिंदी इंपोजिशन के खिलाफ लोग अपना आवाज उठा रहे हैं। बट वुड यू बिलीव कि इंडिया में देयर एग्जिस्ट्स अ लैंग्वेज जिसके प्रति खुद हिंदी का रवैया काफी नासाज है। A language that is not just hated in the south but also in the north. And this special उपाधि, ladies and gentlemen, goes to English. वही लैंग्वेज जिसमें मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ। It's a mix of Hindi and English. We call it Hinglish, where you mix and match like Hindi words and English words, and if you're speaking with someone who speaks both languages, it just works really well. It's the funniest thing. Other people don't really understand it, but it just flows really well and you just go with it. English is not Indian English. So expressions like let's prepone this meeting, I'm like that only, students are passing out, can you revert back, ये सारे expressions हैं unique to Indian English. But ये English नहीं कहलाएंगे। English specifically उस variety of language को कहते हैं जिसमें English and हिंदी के words एक दूसरे के साथ fluidly intermixed हो। Actually देखिए क्या हुआ है कि इनका प्लान जो है ना लास्ट मोमेंट पे बना, इसलिए टिकट खरीदने का टाइम नहीं था। और बाय द वे ये कोई नई इन्वेंशन नहीं है। वी ऑल हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू मेनी इंग्लिश एड जिंगल्स। क्योंकि ये दिल मांगे मोर, टेस्ट भी हेल्थ भी, ठंडा ठंडा कूल कूल। From movie titles like Dear Zindagi and Jab We Met to Love Aajkal and शादी के side effects, English आज इतना कॉमन है कि if you aren't paying attention, आप रियलाइज भी नहीं करोगे कब हिंदी स्टार्ट होता है और कब इंग्लिश खत्म होता है। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे। So, if you're new to this channel, hello, I'm Ashish. हम इंडिया के लैंग्वेजेस पे वीडियोस बनाते हैं, mostly in this cursed language, English, जिसकी वजह से आप में से कई सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट करते हैं to stop speaking in this mixed language. इस वीडियो में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इस मशहूर कंट्रोवर्शियल लैंग्वेज इंग्लिश को आखिर इतने लोग हेट क्यों करते हैं। तो चलो, इंट्रो डन, क्यू द ब्रिज म्यूजिक। कोई सुबह 5 बजे नींद से जागा है, कोई रात को 3 बजे जान बचाए, एक तेरी खिड़की में शेयरिंग करे और एक तेरे बजट में स्नीकिंग करे, कोई नेचर से गेस्ट कोई होस्ट होता है, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, मगर हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। चाय के लिए जैसे टोस्ट होता है वैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, वैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। ये भाषाओं का मेल मिलाप is not exclusive to English. नागालैंड में यूज होती है Nagamese, which is a combination of Ohomia and a lot of tribal languages of Nagaland. Eleventh century में संस्कृत used to be paired with Tamil to form the mixed language of Manipravalam. इंडिया के बाहर मिक्स्ड भाषाओं को मैक्रोनिक लैंग्वेजेस बोलते हैं। 1850s में लिखा गया मैक्रोनिक पोएम कार्बन पोसम लैटिन और इंग्लिश को कंबाइन करता है एंड इस पोएम को बच्चे पढ़ते हैं इन देयर इंट्रोडक्शन टू लैटिन क्लासेस टुडे। इट गोस, द नॉक्स वाज लेड बाय लक्स ऑफ लूना एंड इट वाज अ नॉक्स मोस्ट opportuna to catch a possum or a kuna. On sick knocks with canis unus, 2 boys went out to hunt for kunus. The corpus of this bonus canis was full as long as octospanis. इस्लामिक वर्ल्ड में अरबिक और पर्शियन के मिक्स पोएम्स को मोलामत कहते हैं। Let's take the short molama written by Rumi for example. بسيارة أزموذة أما نبوذ سوذم من جرب المجرب حلت به الندامة. Whoever tests who has already been tested will always be afflicted with regret. रूमी वैसे कोन्या में रहते थे। This land was ruled by both the Byzantine Empire and the Seljuk Sultanate. So this was kind of like being in the middle of the Eastern and the Western civilizations. Rumi therefore not just wrote in Arabic and Persian but also Greek and Turkish. Interestingly, उन्होंने Greek और Persian को combine करके अपने spiritual master Shams के लिए एक poem भी लिखा था. It goes something like this. Puis affedimo figaro prosope naipo sarakinika pish is inki bodham wa akinun kizam या إيها الناس ما بها سوي شما آمدهايم قصد ما فدا شدندر عشق شماست अगर به من بعده تهي شاد خواهم شد وأگر دشنام دهي بازهم شاد خواهم شد أفادي أوتي ثالثي ثالو كي παρακαλώ أذر بندخات مست est εκνούν سخنان πρακεντέρα بشنو πού تسلبي أغاپوسه چون بیات بار او بیگرور گشتم أكنون نفس قلبم را بجوي। यहाँ हम देखते हैं कि रूमी is using Greek for simple sentences, simple questions, जबकि Persian is being used to explore these deeply complex metaphors. You see,
लैंग्वेज एक तरीका होता है कल्चर का रियलिटी को मैप करने का। लाइफ के जिन पहलू पे एक कल्चर फोकस करेगी उन्हीं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के लिए वो वर्ड भी सृजन करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ कल्चर दैट इज ग्राउंडेड इन एग्रीकल्चर विल हैव मेनी वर्ड्स फॉर फार्मिंग, प्लोइंग, हार्वेस्टिंग। बट अ कल्चर जो फोकस करती है स्पिरिचुअलिटी पे, उसमें माइंड, स्पिरिट और कॉन्शियसनेस के लिए वर्ड्स होंगे। एक कल्चर जो डेजर्ट में रहती है उसमें बर्फ के लिए शायद शब्द नहीं होंगे, उसमें शायद रेत के लिए शब्द होंगे। ऑन द अदर हैंड, अ कोल्ड क्लाइमेटिक कल्चर, उसमें शायद रेत के लिए कोई शब्द नहीं होगा, बट स्नो के लिए मल्टीपल टर्म्स हो सकते हैं। शब्द, वर्ड्स जो हैं वो थॉट नहीं है। जैसे कि ईंटें मकान नहीं है, लेकिन मकान ईंटों ही से बनते हैं। अगर ईंटें कम हैं तो छोटे मकान बना पाएंगे आप। आपके पास जितने शब्द होंगे उतना क्लियरली आप सोच सकते हैं और उतना क्लियरली आप कन्वे कर सकते हैं। Words therefore are a culture's way of throwing light at reality. It's a way for a culture to put a flag on a concept and say कि भाई यहाँ पे attention pay करो। Computer science terms में words are basically pointers to more abstract concepts in our mind. जब दो languages gel होते हैं on a meta level, हम दोनों cultures के concepts को एक दूसरे के साथ fuse कर देते हैं। To see this fusion in action, let's take a simple sentence. मुझे कल airport drop कर देना। In this simple sentence, we can see a pattern emerging. English में Hindi functions as what linguists call the matrix language. It provides the grammatical structure, the syntax, the framework, and English serves as the embedded language, contributing mostly content words that get inserted into the Hindi framework. It is perfectly possible to do the opposite, to embed Hindi in English, like saying, I'm doing a lot of chinta. इसमें Hindi is the embedded language and English is the system language. But ऐसा usage is little uncommon. कुछ साल पहले मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। आई रिकॉर्डेड एवरी वर्ड आई हैव यूज्ड ऑन व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर एंड मैंने इन्हें कैटेगराइज किया इनटू हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। आई सॉ कि मेरा हिंदी वाज मोस्टली फिल्ड विद सपोर्ट वर्ड्स, प्रीपोजिशंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड द एक्चुअल एक्शन मीनिंग्स वर कमिंग फ्रॉम इंग्लिश विद अ लॉट ऑफ नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। प्यूरिस्ट्स इस बात से ज्यादा डरते हैं कि इंग्लिश के कारण बहुत सारे सेमांटिकली रिच वर्ड्स इन आवर नेटिव टंग्स विल गो अवे। इंग्लिश में हर साल ऑफिशियली नए वर्ड्स ऐड किए जाते हैं जिससे इंग्लिश का नेचर हमेशा यूथफुल रहे और उसकी वोकैबुलरी नए नए कॉन्सेप्ट्स अब्सॉर्ब करती रहे। बट वी डोंट सी दिस हैपनिंग इन अदर इंडियन लैंग्वेजेस। आई थिंक द ओनली एक्सेप्शन बीइंग तमिल, जहां पे दे मेक एफर्ट्स टू हैव तमिल वर्ड्स फॉर एवरी न्यू कॉन्सेप्ट। अगर इंडियन लैंग्वेजेस को फ्रेश और रोबस्ट रहना है, वी शुड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इंग्लिश एंड इंट्रोड्यूस न्यू वर्ड्स एवरी ईयर इन देम। चलिए, लेट्स नाउ डिस्कस सम सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रीजंस जिसकी वजह से इंग्लिश इतनी पॉपुलर है। द फर्स्ट रीजन इज प्रैक्टिकल यूजेबिलिटी। एज जावेद सर सेड, इंग्लिश हेल्प्स यू एक्सपैंड योर वोकैबुलरी, the set of words that are available for you to use. So the more words you have, the more concepts and mental models you can use. एक English speaker होने से you will have access to both the concept of psyche of Jung and duality of Madhvacharya. Pure Hindi या English में you directly have access to only half of these concepts. And for the second half, you would have translated words. As the phrase goes lost in translation, जब हम एक word को दूसरे language में translate करते हैं, sometimes the intensity decreases. Take for example how Mamta has an entirely different vibe than motherly love. That brings us to the second point. English unites the mind and the heart. हिंदी और इंग्लिश हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज को स्टिमुलेट करते हैं। हिंदी ऑक्यूपाई करती है द स्पेस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, द इमोशनल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। दिस इज द रेल्म ऑफ बचपन के लोरियां, स्कूल के झगड़े, चाइल्डहुड शोज। तो जब कभी कोई हमारे साथ हिंदी में बात करे, हमारा उनसे एक इंस्टेंट इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। इंग्लिश ऑन द अदर हैंड ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ वर्क एंड एजुकेशन, द प्रैक्टिकल फॉर्मल पार्ट। इंग्लिश में इमोशंस एक्सप्रेस कर पाना इज टफ फॉर नॉन नेटिव स्पीकर्स। एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू इमेजिन योरसेल्फ बेबी टॉकिंग टू अ अमेरिकन गोरा बच्चा। इट माइट feel little unnatural because generally we are not exposed to kids in this social scenario. On the other hand, imagine explaining the concept of blockchain to your dadi. सिर्फ बोलचाल हिंदी भाषाओं में how do you explain the concept of encryption, devaluation या verification? It's becoming increasingly difficult to discuss these complex topics without using English. हमारे टीचर भी कहते थे इंग्लिश में पढ़ना और पढ़ाना आसान है, तो मैं सोचता था साला इंग्लिश में कैसे आसान है यार, ये इतने बड़े बड़े नाम होते हैं, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, इससे अच्छा है हमारा हिंदी में साम्यावस्था। अब मैं समझता हूँ यार इक्विलिब्रियम बोलना आसान है, साम्यावस्था, द्विध्रुव बोलना मुश्किल है, डाइपोल बोलना आसान है। English is a very precise language. You have words for discriminating between very related concepts like condescending versus patronizing, charming versus graceful.
sadness and depression. Hindi speakers will struggle to achieve this kind of granularity in Bolchal Hindi. Hindi is better at articulating what the Indian culture wants. We have so many words for chacha, bhatija, nati, phuphi, but English flattens all of this as uncle or aunt. Hindi lets you fine-tune the aspects of respect in a very granular level. किसी को refer करने के लिए you can pick from tu, tum या आप, which again English flattens to just you. Further, we have salutations also like Shri या Ji, जिससे आप हिंदी में ज़्यादा respect tune कर सकते हो. So there seems to be lot more sanskar, lot more adab in Hindi. जबकि English in the context of India is a little more technical, precise. Basically, जब आप English use करते हो, then you have the ability to reach both the mind and the heart. Which is why English is so great at influencing people. No wonder advertisements use English so often. And then I realized that English is the language that connects better with people. Absolutely. Because nobody speaks perfect English. It hits you better. Maybe we call it empathy in advertising. Right. If you can get your audience to empathize with you, or your consumer to empathize with what you are saying, you have a far better chance of success. And finally, it's important to discuss English in the context of class. हमारी सोसाइटी में लैंग्वेज का क्लास के साथ एक बहुत गहरा एसोसिएशन है. You're saying we equate knowing English with intelligence? A lot. Or sensibility? Yes, yes. We pay attention when a person talks in English far more quickly than if he's speaking in Hindi, and he might make a lot of sense, but we don't react as spontaneously to a person who's speaking Hindi. लैंग्वेज से बड़ा कुछ और प्रिविलेज का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है ना, कि आप साफ भाषा बोल पाते हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है. पैसा नहीं है चलेगा, आप एक आदमी जब आपको मिलता है उसकी जेब में फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, पर्स नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि वो अमीर है कि गरीब है? इस जबान से पता चलता है. English can signal high education, more exposure to Western values. It signals privilege, but it might also signal a particular political leaning. Hindi अगर अच्छी हो, then it signals a more traditionalist background, the assumption that you might be conservative. So both languages in the pure form tend to pigeonhole you somewhere. This is why 60s-70s India में जब भी कोई villain को दिखाना होता है, they would have been very good at speaking English, and they would have names like Mona Darling, signaling they are against Indian values. English therefore can become the great equalizer. It allows you to not pick a side, but of course practically होता ये है कि by speaking English, you kind of bother both the kind of purists. प्योर हिंदी स्पीकर्स माइट फील कि आप शो ऑफ कर रहे हो, जबकि प्योर इंग्लिश स्पीकर्स माइट फील कि आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. So English use करना of course carries a certain social risk. This ability to switch between languages and change your personality, linguists इसे code switching कहते हैं. कोड स्विचिंग इज व्हेन कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक आप लैंग्वेजेस को मिक्स एंड मैश कर सकते हो. लैंग्वेज प्यूरिस्ट्स को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. दे वुड लाइक अगर हम लैंग्वेजेस को मिक्स ना करें. उनके मुताबिक कोड स्विचिंग से दोनों लैंग्वेजेस का एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है. अब दो लैंग्वेजेस मिक्स हो तो उनका इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव, ये डिपेंड करता है कि कल्चरल एटीट्यूड्स क्या हैं दोनों लैंग्वेजेस के. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन तेलुगु अब्सॉर्ब्ड संस्कृत, इट कंसिडर्ड इट अ फॉर्म ऑफ रिफाइनमेंट, बट व्हेन तमिल अब्सॉर्ब्ड संस्कृत, इट सॉ इट एज अ फॉर्म ऑफ करप्शन. जब पर्शियन शब्द आने लगे अरबिक में, तो अरबिक प्यूरिस्ट्स कॉल्ड देम अजमिया, मतलब स्ट्रेंज वर्ड्स और फॉरेन वर्ड्स. फिर पर्शियन में जब हिंदुस्तानी लफ्ज आने लगे, पर्शियंस कॉल्ड दिस मिक्स्ड लैंग्वेज उर्दू एज ज़बान बाजारी, मतलब एक रोड साइड लैंग्वेज. संस्कृत जब अन्य भाषाओं से मिलके वेरिएशंस बनाने लगी, संस्कृत प्यूरिस्ट्स वुड कॉल दीज अपभ्रंशस, यानी कि करप्शंस. सिमिलरली हिंदी और इंग्लिश प्यूरिस्ट्स भी एक दूसरे को सस्पिशन की नजर से देखते हैं. 19th सेंचुरी में भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने एक इंग्लिश पोएम कंपोज किया था. He did this to satirize the gulami in colonial India. His poem goes, "When I go sir मुलाकात को, these chaprasis trouble me so much. How can I give daily inam? Ever they ask me, I say such. Sometime they give me गर्दनिया and tell बाहर निकलो तुम. देना न लेना मुफ्त के आए यहाँ, बने दरबान की दुम." As recently as 2009, उत्तर प्रदेश इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी ने प्रॉमिस किया था टू बैन द यूज ऑफ इंग्लिश इन कंप्यूटर्स, बिकॉज उनका मानना था कि ये सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करता है. आयरनी की बात यह है कि हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ट्राई टू कीप अ लैंग्वेज प्योर हैज ओनली इंक्रीज द चांसेस ऑफ इट गोइंग एक्सटिंक्ट. हर जीवित चीज का नेचर होता है टू इवॉल्व, टू ग्रो, टू चेंज. एक लैंग्वेज तभी प्योर रहता है जब हम उसे एक पिंजड़े में कैद रखते हैं. एंड दैट्स द परफेक्ट रेसिपी ऑफ किलिंग अ लैंग्वेज. प्यूरिस्ट्स ये भी नजरअंदाज करते हैं कि खुद इंग्लिश और हिंदी अन्य भाषाओं के मिश्रण से बने हैं. हिंदी बनी है संस्कृत, शौरसेनी प्राकृत, अवधी, खड़ी बोली, फारसी इनके मिश्रण से, जबकि इंग्लिश बनी है लैटिन, फ्रेंच, जर्मैनिक भाषाओं के मिश्रण से. तो कौन सा लैंग्वेज प्योर है और कौन सा इम्प्योर, ये कौन डिसाइड करेगा? According to a study done by IIT Delhi on the language used on social media, इंग्लिश का यूज बढ़ते ही जा रहा है.
एंड काउंटर इंट्यूटिवली एक और स्टडी प्रूव करती है कि इंग्लिश इज गेटिंग मोर एक्सेप्टेड इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस बिकॉज वहां पर इंग्लिश इज सीन एज एन एस्पिरेशनल लैंग्वेज. देयर आर मेनी मैक्रोनिक लैंग्वेजेस इमर्जिंग इन ऑल ऑफ इंडिया. फॉर एग्जांपल, वेयर आई लिव, ओडिया एंड हिंदी हैव स्टार्टेड मिक्सिंग टुगेदर टू समथिंग फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म लेट्स कॉल्ड ओहिंदी. इस वेरिएशन में हिंदी इज प्लेइंग द रोल जो इंग्लिश में इंग्लिश प्ले कर रही है. हिंदी इज बिकमिंग द सिंबल फॉर अर्बन ओडिशा. Historically, this change is not new. Anytime a new culture came in India, it started forming these macronic languages with all Indian languages. Urdu was one of them, जो बना था हिंदी और फारसी को मिक्स करके. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में you will find the speakers of Halbi, a language that is the mix of Odia and Marathi. Or in Karnataka, in the language Badaga, which seems like a mixture of Kannada and Tamil. ये difficult है बोल पाना कि English का actual future है क्या. Is this just a trend that will fade away? क्या ये एक मेजर लैंग्वेज की तरह एस्टैब्लिश हो जाएगी? क्या इसमें भी धीरे धीरे ग्रामर बनने लगेंगे? क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आने लगेंगे? We can't tell for sure because it's all happening right now and we'll have to, I guess, wait and watch. जब कन्नड़ा लैंग्वेज में संस्कृत ब्लेंड हो रही थी तब कन्नड़ा लिंग्विस्ट श्री विजय जी ने अपने कॉम्पोजिशन कविराजमार्ग में स्पेसिफाई किया था कि किस तरह के कॉम्बिनेशंस ऑफ कन्नड़ा एंड संस्कृत में अच्छे साउंड करेंगे और किस तरह के कॉम्बिनेशंस अजीब साउंड करेंगे. शायद समय के साथ इंग्लिश में भी एक ऐसा फॉर्मल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो जाए. प्यूरिस्ट फील की इंग्लिश या फिर कोई भी अदर इंग्लिश ब्लेंड वाली लैंग्वेज जैसे ज्यादा पॉपुलर होगी, हमारे नेटिव लैंग्वेजेस के वर्ड सबसे पहले आउट ऑफ यूज होने लगेंगे एंड साथ साथ उस कल्चर के एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स भी खोते चले जाते होंगे. बट बाय पेइंग दिस कॉस्ट वी गेन एक्सेस टू मोर पीपल, वी बिकम मोर अंडरस्टैंडेबल एंड हम ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हैं. ये तो टाइम ही बताएगा कि विल वी एज अ कंट्री be willing to pay this cost or not. Comments में बताइए what do you feel about English and what do you think English का future क्या होने वाला है इंडिया में. I'll see you in the next video.